بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Worthy Chairman, Co-Chairman, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I'm very thankful to the organizer for giving me this opportunity to talk about this emerging field of psychiatry, and can see Professor Reza Niaz, and there are many senior people who are sitting here. And I'm also thankful to a very renowned reporter of the Jungle, Bhatti Saab, for coming to this program. So you can see the mental health, my topic of presentation is mental health, the role of emerging field of nutrition psychiatry. So why ये नहीं काम कर रहा अच्छा आप वहाँ से आगे कर वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा चूँकि वो दूसरे प्रेजेंटर ने कहा कि मैं नमाज पे जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा लंबी खींचना, मैं जब तक आ जाऊँगा। एक तरीका है कि कुदरत ने खुद ही डिले कर दिया। अच्छा दूसरी बात कि कमाल साहब ने मेरा तारुफ एमरेटिस के हम नॉट एमरेटिस, आई एम मेरिटोरियस प्रोफेसर। लोगों को पता नहीं है कि एमरेटिस और मेरिटोरियस में क्या फ़र्क है। एमरेटिस जो है रिटायरमेंट के बाद वो मिलती है, और मेरिटोरियस प्रोफेसर ग्रेड 22 ऑफिसर होता है, विच इज़ given even to the working person. So while there is a need of nutrition psychiatry, the 1 in 4 is having problem, and around 800,000, that means 8 lakh लोग अफराद सुसाइड करते हैं, and the current available medication are not sufficient to tackle the psychiatric problem. So we have to see the other aspect, how to tackle the psychiatric disorders. So and you can see that most of these illnesses are related to the productive age group, that is young लोगों में है। इसमें मसला है अब आप ठीक है सही। अच्छा तो if you look at this slide, that link between lifestyle changes and the mental illness, कि physical exercise, social relationship, or diet and nutrition has a lot of component in the prevention, treatment, and rehabilitation of the mental disorder. And the diet influences brain health and emotional well-being. This is a complex phenomena, that how cravings start and habits can lead to good quality of food intake, and this will eventually improve the mental health and as well as physical health. So why nutrition psychiatry? It is a growing discipline that focuses on the use of food as supplement to provide essential nutrition as part of the integrated and alternative treatment for mental health disorder. This means we have to explore how diet, nutrition, and eating habits खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए। सीजियस बराए खुर्दम न कि खुर्दम बराए जीस न कि जीस बराए खुर्दम होना चाहिए। हम खास तौर पर दावतों में जाते हैं तो ऐसे प्लेट भर लेते हैं जैसे पेट अपना नहीं भराया। एंड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन साइकियाट्री इज नंबर 1 बैलेंस डाइट, और जिसमें होल ग्रेन्स और ये जो हमारे मार्केट में जो चीज़ें हैं वो बहुत अजीब व गरीब है। मैं और शुक्र है कि अब जो गज़ा की बाकी के बाद लोगों ने ये इन्फ्लेमेशन वाली फूड लेना कम कर दी है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और ये चीज़ें। एंड नंबर 2 इज़ क्वालिटी ऑफ फूड, एंड द 3rd इज़ पर्सनलाइजेशन। ऐसा भी है कि देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क, और इवन जो है वो गंदम को नहीं टॉलरेट करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक फिजिशियन ने कहा था कि गंदम को हटाया जाए तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हों। मैंने उस पर एडिशन की कि गंदम खा के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इधर फेंका गया, हम खाएंगे तो उधर फेंके जाएंगे जल्दी।
So that's really a problem. If you want to reduce weight and prevent a lot of disease, gandam should be eradicated. Uske bajay bajra or jaw is better alternative. And then integration of these things. Now if you look at the brain, you can see, now I want to focus on the food, but we cannot ignore other components, sleep, stress, as Madam has kaha, emotion, social connectedness, and microbiota, और ख़ास तौर पर जो आजकल साइकोबायोटिक का कॉन्सेप्ट है, इस मिलके ही दिमागी, नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों को टैकल करती हैं. And now the new area is the brain gut connection. और इसमें देखा है कि माइक्रोबायोटा गट ब्रेन, पहले कहते थे ब्रेन जो है वो, उसको मैं किताब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा सीनियर लोगों के सामने, मैंने इसमें किताब भी लिखी है, द बीपिंग गट. अब कहते हैं कि पेट से भी दिमाग को आप ठीक कर सकते हैं, कि स्टीयरिंग पहिए को कंट्रोल करता है, लेकिन पहिए को टेढ़ा करेंगे तो स्टीयरिंग भी टेढ़ा हो सकता है. और दिस इज अ पोटेंशियल न्यूट्रिशन रिलेटेड मैकेनिज्म इन द मेंटल हेल्थ. और इसमें खास तौर पर इन्फ्लेमेशन, और सारी चीज़ों का जड़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है. इफ़ वी इम्प्रूव इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करें और ये इन्फ्लेमेशन वाली डाइट को ठीक करें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा एंड न्यूरो, पहले कहते थे कि न्यूरो रीजनरेशन कैन नॉट ऑकर, अब कहते हैं नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी से यू कैन इम्प्रूव दी नर्वस सिस्टम. और उसके लिए ये है कि न्यूरो प्रोटेक्टिव डाइट कौन सी होनी चाहिए, इसमें विटामिन B1 हो, और इसी तरह डिक्रीज न्यूरोटॉक्सिसिटी को हम कम करेंगे तो उसमें ये डाइट हो. तो ये सारा इस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है. और उसके लिए ये है कि डेली सर्विंग, जो मेजर कंपोनेंट ऑफ योर फूड शुड बी वेजिटेबल फूड एंड सो ऑन. और कम से कम जो है ये प्रोसेस फूड जो है, जो हमारे बच्चे सारा दिन खाते हैं और फूड पांडा के थ्रू मंगवाते हैं, दे आर रियली कल्प्रेट फॉर मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर. और इसलिए इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑफ मेंटल हेल्थ के डाइवर्स डाइट स्टडीज हुई हैं, मेडिटेरियन बेनिफिट्स क्या हैं, एंड सो ऑन. एंड होलिस्टिक अप्रोच इज अप्लाइड, कि ये प्रोसेसिंग, एक स्टडी की गई कि जो है वो गाजर खाने वाले लोगों को इंटेस्टाइनल लार्ज रेक्टम की कैंसर नहीं होता. तो उन्होंने सोचा कि क्या उसमें बताया, एक खिलाया, मैंने एक खिलाया तो फ़ायदा नहीं हुआ. फिर कहा कि गूदे से शायद फ़ायदा हुआ. आखिर में ये तय हुआ कि नहीं, पूरा गाजर खाएंगे तो प्रिवेंशन हो. तो इसी तरह से ब्लड को जब बनाने लगे तो पता चला, जब हॉलिस्टिकली देखे ब्लड नहीं बना सका. तो एंड द माइंड डाइट आजकल ये नहीं है कि डैश डाइट के बाद मेडिटेरियन डाइट और उसको मिला के कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिले कैसे कर सकते हैं, इसको माइंड डाइट कहते हैं. एंड दैट इज के लिमिट योर बटर, स्वीट एंड पेस्ट्रीज, और उसके बजाय आप जो है वो चीज़ें खाएं जो कि कॉग्निशन को ठीक करते हैं, जिसमें आपके बादाम, अखरोट और सब चीज़ें शामिल हैं. इसीलिए हमने अभी आपको देंगे, ये हमारे इस बार का वो है JPP छपा है, मैडम आपको भी देना है हमने. अगला आपका जो हमने जो टॉपिक है वो अगले वाले में रखा है, क्योंकि रिकग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी था वो. तो इसमें जो है हमने ये दिखाया है कि दिमाग में किस तरह न्यूट्रिशन को, और ये हमें एक पेंटर ने बना के दिया है ये. अच्छा, अब व्हाट आर द न्यूट्रिशन दैट इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ. विटामिन D का रोल सबको पता है कि न सिर्फ डिप्रेशन में, एंजाइटी में, बट मेनी डिजीज में ठीक कर सकता है. ओमेगा 3 का बड़ा अहम रोल है एंटी साइकोसिस के साथ. फोलिक एसिड का बड़ा रोल है डिप्रेशन के साथ. और L-मिथाइल फोलेट, नॉर्मल फोलिक एसिड जज़ब नहीं होता है जब तक इसमें मिथाइलेशन न करें. मिथाइलेशन से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके उसको एफिकेसी बढ़ा देता है एंटी डिप्रेशन. और B का लेवल, अच्छा ये मैं मुख्तसर कर दूँ. अच्छा, फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन. हर जगह के लिए हर चीज़ नहीं है, तो कुछ लोगों को कोई चीज़ फ़ायदा देगी, कुछ लोगों को नहीं देगी. इसी तरह से न्यूट्रोजीनोमिक्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जीन से रिलेटेड हो, और माइक्रोबोम रिसर्च इस पर बड़ा काम हो रहा है. अब मैं ये स्लाइड खासतौर पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि हम खाते हुए टीवी पे, मोबाइल पे, उस पर नज़र होती है और खाने को नहीं देखते, और टीवी पे नज़र होती है. तो माइंडफुल डाइट अगर लें और उसमें टच कर दिए, छुरे कांटे, इस पर भी रिसर्च हुई है कि ये भी नहीं है. आप हाथ लगा के वहाँ से सिग्नल जाते हैं दिमाग को, सैटिस्फैक्टरी सेंटर उसी हिसाब से एक्टिवेट होता है.
تو اس لحاظ سے اپنے سائڈ سے کھانا ہے، اور جو اسلام میں ہے کہ اپنے سائڈ سے کھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا مناسب کھائیں، اعتدال میں کھائیں. تو اس سے پھر جو ہے اچھا فوڈ ایڈکشن بھی ہے. دس از آلسو اینیمل ہسٹری کی اسٹڈی کی گئی کہ فوڈ ایڈکشن کین آلسو اکر. اور دس واز مائی اسٹڈی جو کہ میں نے 1997 میں 1994 میں نے GIT کلینک شروع کی جو اب تک چل رہی ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہے وہ ایبڈومینل پین، گیس، گولا اس پہ آتے تھے، اور زیادہ تر وہ حکیموں اور فیتھ ہیلر کے اس میں ہوتے تھے. اینڈ آئی ہیو پبلشڈ این آرٹیکل کہ گیسٹروانٹسٹائنل سومیٹائزیشن ان میل اینڈ فیمیل ود ڈپریسو ڈس آرڈر، جامع میں چھپا ہے JP میں. اینڈ دس از مائی book, The Weeping Gut, رونے والا پیٹ, an evidence-based study on the impact of emotion or mental state on the digestive system. لاسٹ ٹائم ہم جب آئے تھے سوسائڈ کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا سینٹ میں، تو وہاں پہ سینٹ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی باتیں سنی، ہم بس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا کہ 325 کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں سیکشن 49 سے کہ سوسائڈ والے اٹیمپٹ والے مریض کو دیکھیں گے مینٹل ہیلتھ کو، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ دماغ اور پیٹ کا کیا ہوا. تو میں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا. میں نے کہا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، جب ذہن پریشان ہوتا ہے تو آنسو آنکھ سے میدے میں تیزاب نکلتا ہے. میں نے کہا آپ کی گاڑی کے انجن پلگ میں کچرا آ جائے تو سائلنسر میں دھواں آئے گا. کہتے سمجھ گیا. میں نے کہا وہ سینٹ صاحب نے کہا. تو اس لیے یہاں سے ایک پیشنٹ جو پاکستان ہاکی ٹیم کا پلیئر تھا، اس نے 13 انڈوسکوپی باہر سے کرائی تھی، 25-26 ادھر سے کرائی تھی. Nobody was trying to locate the illness at mind. اس کو obsession تھا، ہر کوئی اس سیلنسر کے ساتھ کھیل رہا تھا، انڈوسکوپی، کولونوسکوپی. اور دس از دی نیو ریسرچ کہ کس طریقے سے الزائمر ڈیزیز، ڈپریشن کو کس طرح یہ ENS انٹرنل نروس سسٹم یہ جو ہے کس طرح کنٹرول کرے گی امیون سسٹم کو. اور اب جو ہے کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے سائیکوبائٹک، اے نوول کلاس آف سائیکوٹروپک، جس میں اس کو یہ گٹ برین ایکسس کے تھرو ایکشن کر کے دماغی بیماریوں کو کنٹرول کریں گے. اینڈ دس از دا فوڈ وچ پروموٹ برین اینڈ دس ہارٹ. تو 5 portion آف فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس آر اسینشیل، جس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لاٹ آف واٹر انٹیک اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ کا جو عمل دخل ہے بڑا اہم ہے. یہ آخری سلائیڈ ہے کہ اسلام میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، اپنے سائڈ سے کھائیں، مناسب کھائیں، اور آخر میں شکر بھی ادا کریں. اور کہتے ہیں کہ آرام سے چبا کے کھائیں کہ ٹائلین جو منہ میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اس کا وہ ہو، اور اس کا جو ہے پھر امپیکٹ ہوگا. اور آخر میں صاف بھی کرنا ہے، صفائی کا خیال بھی کرنا ہے. With this I'll end my talk. Let's join hand to understand the revolutionary field of nutrition psychiatry and transforming mental health treatment. Jazakallah khair. Thank you very much. اگلا اسپیکر نہیں آیا. If there اسپیکر ہوگا میں نماز پڑھنے گیا شاید جمعے کی، میں نے کہا ہم تو مسافر ہیں بعد میں پڑھ لیں گے. Is there any question or comment بتا سکتے ہیں؟ ویری انوویٹو کہ آپ کا اب آپ نے جس چیز پہ بولا ہے یوزلی ایک ہمارا بلیک اسپاٹ، ابھی تک ہم لوگوں نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا تھا، جس میں ظاہری بات ہے ہمیں پروموشن والی جو آپ نے بتایا کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، پروموٹس کہ ہم لوگ سائیکیٹرک النیسز ڈیولپ ہی نہ ہو، ایک پروموشن کا پارٹ ہے. کچھ چیزوں میں ہم ڈائگنوسس میں مس کرتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے ہم مس کیا کرتے تھے انیمیاز یا ہرنگ ڈیفیشنسی، وائٹامن B کمپلیکس، آئیڈین کو، اور اب وائٹامن D کو بہت دفعہ ہم لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے بھی سائیکیٹرک ایشوز جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اسے فوڈ ایڈکشن کا کہا، اور آخر میں جس چیز کا میں اصل میں پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا تھا کہ کہیں سائیکو بایوٹکس کی چکر میں پہلے ہی ہمیں انڈسٹری والے بہت لوٹ رہے ہیں نئی نئی طرح کے وائٹامنس، اور کوئی بھی وائٹامن ان میں سے نہیں پتہ کہ ان میں سے کتنے وائٹامنس کتنے ضروری ہیں، کس تعداد میں ضروری ہیں. بھائی ہمارے کئی سائیکیٹرسٹ اور خاص طور پہ نیورو فزیشینز اور ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ 16 روپے کی سائیکیٹری کی دوا ہوتی ہے اور
100 रुपए का या 300 रुपए का न्यूट्रिशन। तो आई थिंक सो कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं एटलीस्ट वी शुड गिव न्यूट्रिशन, ये सप्लीमेंट्स हमने बहुत एहतियात से जब ही देने अगर उसकी नीड है, और हमने फार्मा वालों के चक्करों में नहीं आना। और साइकोबायोटिक्स में मेरे ख्याल में हमने फूड पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ना हो कि एक हम नए फार्मा इंडस्ट्री की तरफ जाए। थैंक यू। वेल पॉइंट। इसमें मैं बताता चलूँ, एक आजकल जो है मैग्नीशियम का बड़ा रोल आ रहा है। मैग्नीशियम का बहुत रोल है जिसको अभी तक इग्नोर किया गया है। अच्छा, जहाँ तक बात है, कोई 8-10 साल पहले मैं जहाज में जा रहा था यूके, तो वहाँ एक रास्ते में एक बंदा मिला, कहता मैं आपका शागिर्द हूँ। मैंने क्या करें? कहता मैं यूके में PhD कर रहा हूँ। किस चीज़ पे कर रहे हैं? MBBS किया। और कहता मैं जो है इनोकुलेशन थेरेपी पे काम कर रहा हूँ। मैंने इनोकुलेशन थेरेपी तो मेरे लिए नई चीज़ है। कहते मैंने क्या करते हैं? कहते हैं हम एंडोस्कोपी करके पिपेट से जो है नीचे से वो उठा लेते हैं और वो एक डिमेंशिया के मरीज़ को देते हैं और डिमेंशिया का मरीज़ इम्प्रूव हो जाता है। तो मैंने कहा यार, मैंने डिसाइकोला तो सुना था, ये जो है नई थेरेपी तो अजीब हो गई है, लेकिन कहते नहीं, आप ऊपर से निकालते हैं। अब जो है ये बात सही है कि नेचुरल वे में नेचुरल प्रोबायोटिक क्या है? नेचुरल प्रोबायोटिक आपका क्या है? आपका दही, आपका केला है, आपका जो है रेड बीन है। तो उसको प्रोमोट हमें ज़्यादा करना चाहिए। और देखा ये गया है कि जैसे आपने बताया कि बंदे ने अगर एनीमिक होगा, उसको आप कितना एंटी डिप्रेसेंट देंगे, वो सुस्त होगा। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन इसको भी हमें रिसर्च करनी चाहिए कि अगर जो है फेल्योर है ड्यू टू एंटी डिप्रेसेंट, हो सकता है कि ज़मीन खराब हो। बीज तो हमने बेहतरीन डाला, लेकिन ज़मीन भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी भट्टी साहब। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि प्रिवेंशन में तो आपकी बात समझ में आती है कि अगर हम वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, लेकिन जो लोग जिनको नफसियाती अमराज का शिकार हैं और ट्रीटमेंट है, तो क्या सिर्फ इलाज बिलग़िज़ा से ही सही होना है या अद्वियात के साथ आप बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, इसके मुझे याद आया, ये जो PIE में जो एरोसिल होती हैं, पहले आती हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाई ना देना, मैं मोटी हो जाऊँ, सो ये। मैंने कहा बड़े लवाजमात। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आप लाइफस्टाइल पे आएँ, आप रात को जल्दी सोएं। आप जल्दी सो सकती हैं 9 से 10 बजे, ताकि आपकी जो है साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल ठीक हो, दिमाग में घड़ी है पहला। और दूसरा ये कि एक्सरसाइज, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन रिलीज होते हैं। अच्छा, ये थेरेपी भी है। एक रिसर्च की गई है, गल्फ वालों ने छापी है, उसमें लिखा कि एक ग्रुप को जो डिप्रेशन वाले मरीज थे, 50 लोगों को ट्रेडमिल पे 14 दिन एक्सरसाइज कराया गया और 14 दिन दवाई दी और 14 दिन फ्री छोड़ा। यानी एक ग्रुप को फ्री छोड़ा, एक को जो एक्सरसाइज 14 दिन कराई और एक को ये कराई। जो एक्सरसाइज वाले थे उसके रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन लिखे हुआ ये नीचे था कि हमें इतनी एफर्ट करनी पड़ी इसको लाने पर, रोजाना नहीं आते थे। जिस तरह गाड़ी का पेट्रोल कम हो, आप कितना विल पावर इस्तेमाल करें वो ठीक नहीं है। तो हमें हॉलिस्टिकली देखना चाहिए कि अगर एक गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो विल पावर से नहीं चलेगी, रोड ठीक होगा तभी से नहीं चलेगी। तो ये सारे कंपोनेंट ज़रूरी हैं, न्यूट्रिशन का भी, स्लीप, एक्सरसाइज, और साथ साथ जो है मेडिकेशन और प्रोबायोटिक और नेचुरल प्रोबायोटिक ज़्यादा अच्छे हैं। फिर उसके बाद में आप जो है जो आप बने हुए हैं, दिस ऑल आर हेल्पफुल। मैं तो देखा है बड़ा हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्योंकि हमने ये अवेयर आपका, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको आगे अवेयर करवा सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह मिसयूज हो रही हैं और जिस तरह प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं, और उनके साथ साथ बात हो स्टेरॉइड्स भी यूज कर रहे हैं। और ये जिम वाले जहाँ पे आप लोग हेल्थ क्लासेस करने गए होते हैं, वहाँ पे यूज हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ बहुत बड़ी है, उसका किसी ना किसी जगह मुमकिन है हेल्थ से ताल्लुक होगा, क्योंकि और बिग फैक्टर्स होंगे, लेकिन दोज आर लाइक पैनिक डिसऑर्डर और इवन यंगर एज। मेरे ख्याल में हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हम लोग इसको एनर्जी ड्रिंक्स और इसको भी कम कर रहे हो, हमें लोगों को इसको कैफीन एडिक्ट और ये चीज़ें ना। मैं तो कहता हूँ कि मुझसे गवर्नमेंट पूछे कि क्या चीज़ रेडिकेट करें तो आप बीमारियाँ, सबसे पहले मैं कहूँगा टोबैको को, कोल्ड ड्रिंक को और चीनी को और ये ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स को हटा दें तो बीमारियाँ बहुत ठीक हो जाएंगी। जी
Sir, my name is Dr. Shabir Ahmed Khan. I am a gastroenterologist, and I am the only gastroenterologist in Pakistan who is also a psychotherapist. And this functional GI disorders, the gut-brain axis, that is my specialty. Masha, thank you. So I want to comment that at least in the, if we look at the research, there is a large data of research on microbiome. And this microbiome, which is the useful bacteria in the gut, they have a role in Alzheimer's, and they have a role in depression, they have a role in even in autoimmune diseases. So on the face of it, if we somehow balance our microbiome, so it will have its effects on the brain, on all the system of the body, because there is a growing field in the gastroenterology which is called leaky gut. And all the things, all the antigens and all the toxins, they enter our body through the gut. And whenever there is microbiome balance is not right, then there is the gut become inflamed, and there is leakiness of the gut. And then those toxins or immune reactions also, so they go to the brain, to the heart, to the lungs, to the skin. So I mean, I do not have any data to show that the psychobiotic works. But at least on the theoretical level or on the face of it, it looks that they might be or they should be working for alleviating the brain problem also. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. एक लाइट नोट पे मैं कह रहा हूँ कि शायर ने तो जिगर को जिगर और हमारे हकीम साहबान जिन पर इल्म था, लेकिन इल्म उसके साथ चला गया, डॉक्यूमेंट नहीं किया. उन्होंने मैदे पे वो, और जो शायर कहते हैं कि नज़र के सामने जिगर के पास, गुर्दे बेचारे का कोई जिक्र नहीं. वो अदीब रिली साहब को अल्लाह उसको जन्नत दे, अच्छी तरह से बड़ा मकाम दे के उसने गुर्दे को थोड़ा हिफ्ज़ दी. लेकिन मैदे से रिलेटेड बहुत थे, लेकिन हमारे हकीमों ने अपना नुस्खा अपने साथ इस दुनिया से चले. तो इस लिहाज से ये बात सही है कि अगर रिसर्च हो, और वो हम ये तो बात तय हो गई है कि गंदम पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि ये नहीं होना चाहिए, और हमारे खाने गंदम के रोटी के बगैर पूरे नहीं होगी. पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ये नहीं खाया. थैंक यू वेरी मच.